Welcome back to maths class. Today we will solve some problem based on inverse trigonometric functions. Before this we have quite understanding over this topic. Now we have some questions here. We will try to solve these all questions. One by one we will take these questions. First question of your exercise is this one. Sine inverse of sine 2. You have to find out the value of this. So solution of first question. We have sine inverse of sine 2, sine inverse of sine 2. Let this I take as theta. And students, you better know that the range of sine inverse is where theta is always lying between minus pi by 2 to pi by 2. This you must be learned here. Now we have to find out the value of this. It means we have to find out the value of theta. So we have to change this 2 in such a way that this comes in this range. So let me check for this as sine, since actually this is 2 radian. If you will subtract this 2 from pi, then this comes as 3.3. The value of pi is 3.14 minus 2. And this comes something as 6, 8.0. It means this value comes between minus pi by 2 to pi by 2 radian. So we can change this 2 in terms of pi minus 2, and actually so this becomes sine inverse of sine pi minus 2, and this comes in which interval? Second interval. And in second quadrant, in second quadrant sine theta is always positive. So therefore this can be written as theta. This implies that sine pi minus 2 is equal to sine theta. Comparing both sides here, we get the value of theta as pi minus 2. Okay, so and this pi minus 2 is this, and this comes in this range. So our value for sine inverse sine 2 will be equal to pi minus 2. Now similarly for second question, same question is here, tan inverse of tan inverse minus 6. So for this we will apply the same procedure here. The second question is here, tan inverse tan inverse minus 6. Sorry, here is not inverse, here is simply tan minus 6. Now see here, let again this is equal to theta. Let me consider this as equal to theta. Then we have to find the value of this as, so that is minus 6. And here you know that theta comes in which range? Theta is greater than minus pi by 2 and less than pi by 2. So our value must come in this range. हमारी वैल्यू जो है वो इस रेंज में आनी चाहिए. इस तरह से हमें minus 6 को कन्वर्ट करना है. तो आप इसको लिख सकते हैं ऐसे. This implies that tan of minus 6 is equal to tan theta. ये tan इनवर्स आपका इधर चला जाएगा, tan theta हो जाएगा. अब इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि ये जो वैल्यू है यहाँ क्या है इस रेंज में. जिसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, tan minus 6 है जैसे, तो आप लिख सकते हो इसको tan 2 pi minus 6. और ये tan 2 pi minus 6 है, ये आपका किस रेंज में, कौन सा क्वाड्रेंट आपका है, फोर्थ क्वाड्रेंट. और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan क्या होता है, निगेटिव होता है. और tan minus 6 आपका इसमें क्या होता है, minus tan theta. तो आपको minus 6 पर लिख सकते हो 2 pi minus 6. और 2 pi minus 6 की वैल्यू है, थोड़ा सा यहाँ पे देख ले, 2 pi minus 6 होगा आपका 2 into 3.14 minus 6. इट मींस ये आ जाएगा आपका 2 4 8 2 3 6 minus 6. ये फिर से आपका आ जाएगा 0.28. और ये 0.28 है वो किस रेंज में आता है, minus pi by 2 to pi by 2 के रेंज में. क्योंकि minus pi by 2 होगा आपका minus pi by 2 आपका समथिंग होता है 3.14 upon 2. It means 2 1
2 5 एंड 2 7। ये आपकी मिनिमम रेंज होगी माइनस और मैक्सिमम होगी आपकी 1.57। इट मींस ये आपके इस रेंज में आ जाएगा। इसका मतलब हमारा जो ये -6x को कन्वर्ट कर सकते हैं 2 पाई -6 में। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा = tan थीटा। और इसमें एक चीज और भी है, tan माइनस थीटा हमेशा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में -tan थीटा। तो इस तरह से हम इसको कंपेयर करेंगे आपका तो ये आ जाएगा थीटा = 2 पाई -6। देयरफॉर दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स ही पे जो वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी यहां से आपका 2 पाई -6। इज दैट क्लियर? अब इसी तरह से आपका है, इनको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से? क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 tan इनवर्स ऑफ दिस होल = cos इनवर्स ऑफ दिस। इट मींस वी हैव टू प्रूव लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड = सी हियर, जब कभी भी हम लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूव करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे आपका cos इनवर्स। तो हमें कहीं वो प्रॉपर्टीज का यहाँ पे यूज करना होता है। तो 2 tan इनवर्स को क्या हम cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी जब हमारे पास एक होता है आपका, देखो एक प्रॉपर्टी है 2 tan इनवर्स x = sin आपका cos इनवर्स के फॉर्म में आपका होता था cos इनवर्स 1 - x² अपॉन 1 + x²। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती थी। तो वही है, अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए कैपिटल X मान लेते हैं तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में और हमें वही चाहिए। इसलिए LHS आपका हो जाएगा 2 tan को हम cos इनवर्स में अगर कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे तो cos इनवर्स और ये पूरा 1 - x, जो x है ये पूरा आपका होल है तो आपका हो जाएगा 1 - अंडर रूट है यहाँ पे, तो ये आपका आ जाएगा a - b अपॉन a + b tan स्क्वायर x/2। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 + a - b अपॉन a + b tan स्क्वायर x/2। इस तरह से आ जाएगा। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आपका तो ये आएगा cos इनवर्स। इसका अगर आंसर लेंगे हम यहाँ पे तो 1/1 है, a + b का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और tan स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2। तो a + b * cos स्क्वायर का मल्टीप्लाई जाएगा, आपके पास आ जाएगा a + b cos स्क्वायर x/2 माइनस a - b sin स्क्वायर x/2। ये आ गया आपका। इसी तरह से नीचे आपका आ जाएगा और डिनोमिनेटर में आपका आ जाएगा a + b cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे भी a + b cos स्क्वायर x/2। तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं न्यूमरेटर लिखूंगा तो इसमें इस तरह से आ जाएगा a + b cos स्क्वायर x/2 प्लस a - b sin स्क्वायर x/2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगा आपका cos इनवर्स। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से a और यहाँ से भी a कॉमन लेंगे यहाँ पे और a cos स्क्वायर x/2 माइनस a sin स्क्वायर x/2। a को कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इसी तरह से यहाँ पे b को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और b को यहाँ से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा b का, अगर हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो b यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर x/2 और यहाँ पे माइनस इनटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x/2। सिमिलरली हियर नीचे भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा a cos स्क्वायर x/2 और प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर x/2 आ जाएगा a cos स्क्वायर x/2 प्लस sin स्क्वायर x/2। फिर यहाँ से b को मल्टीप्लाई यहाँ से और यहाँ पे भी कर लेंगे तो आपका आ जाएगा प्लस b cos स्क्वायर आ जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। इस तरह से आ गया।
इज इक्वल टू cos इनवर्स, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आपको पता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है आपका क्या, cos 2 थीटा, cos x, तो cos 2 थीटा और थीटा का x बाय 2 है, करेक्ट, यू आर करेक्ट, तो आपका यहाँ आ जाएगा a cos x cos b x प्लस b और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है आपका, तो ये आ गया आपका b into 1 अपॉन इसी तरह से यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा a into 1, ठीक है, प्लस b और ये फिर से हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपका cos 2, तो आपका आ जाएगा cos x। इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व एक स्टेप और आगे तो आप आएगा cos इनवर्स a cos x प्लस b अपॉन a प्लस b cos x, और ये चीज आपको चीजें यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, तो दिस इज इक्वल टू RHS। इस तरह के क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, सिंपल स्टेप्स है, बस आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट आई विल टेक, मैं इसको रब कर सकता हूं, नोट कर लेंगे इसको पहले। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है, वेरी सिंपल। दिस क्वेश्चन इन आवर जनरल एग्जाम, देखो यहाँ पे आराम से 4 sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi. If this is given to you, then you have to find out the value of x. So see here student, how you will use the property here. You have pi right side, you have cos inverse x, you have sin inverse x. अगर हम यहाँ से एक sin inverse x इसके साथ ले लें, तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बनती है sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2। उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ से sin इनवर्स x, तो मैं ले सकता हूँ इसको 3 sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। 4 को मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ओके। नाउ वी हैव दिस वन, दिस बिकम पाई बाय 2, दिस इज द प्रॉपर्टी हियर, तो वी गेट हियर sin इनवर्स x प्लस ये रिप्लेस हो जाएगा आपका पाई बाय 2 से, जो प्रॉपर्टी है इक्वल टू पाई। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 को उधर ले जाएंगे तो पाई माइनस पाई बाय 2 और वो मिल जाएगा आपका फिर से पाई बाय 2, इसको इधर से शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ओके। नाउ दिस बिकम sin इनवर्स x इज इक्वल टू, इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपका आएगा पाई बाय 6 एंड दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू sin ऑफ 1 by pi by 6। Therefore x is equal to sin of pi by 6 is sin cutting 1 by 2, so 1 by 2 will be your answer। So these type of question may be asked in your exams, further we will solve more questions, so you have to practice much of these type of question using properties, and this is enough for the day। Thank you students।